Yeah, so we are starting with the thing. So our today's topic is about role of physiotherapy in hypertension. Okay, I am Gupta. First of all, the disclaimer: this presentation is only for the sensitization, guidance, and creating awareness among the participants about the role of the physiotherapy in hypertension. Although we have tried our best to include all the latest correct information about the disease, but it may change at any point of time due to ever evolving new findings from various ongoing researches on this. Therefore, participant discretion is advised along with the proper implementation of your clinical knowledge and wisdom. So, as we all know, new and new researches are going on every topic nowadays. So, I have tried my best to include all the latest information, but still, in case like new information may be missed from my side also. So, please implement your clinical knowledge and wisdom before practicing anything. अच्छा है ना This ऐसा अच्छा रहेगा yeah, please mute yourself because it's creating noises. Okay, if any problem, just WhatsApp me the thing in the group. No problem, or WhatsApp me personally. This presentation on physiotherapy in hypertension, a complete clinical approach, doesn't give any kind of permission or alliance to anyone to practice or teach any content unless they are properly qualified, trained, and licensed to practice. If done, it will be purely on their own risk and responsibility. The organizer, presenter, and/or associated organizations, yeah, please mute yourself, everybody. And it will be purely on their own risk and responsibility. The organizer, presenter, and responsibility for the same. This presentation shall not be reproduced without the written permission of the presenter. Okay. So coming to now, need to know why we should know about the role in management of hypertension. So as we all know, we physiotherapists are and often have direct contact with patients. देखिए हम लोग हमेशा ज्यादातर क्या होता है कि पेशेंट्स के साथ में फर्स्ट कांटेक्ट में रहते हैं, रेफरर भी होते हैं, बट ठीक है, वी आर मोर और लेस इन फर्स्ट कांटेक्ट विद द प्रैक्टिशनर्स, और वी कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर प्रिवेंशन. देखिए हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हम बात करते हैं हमेशा क्योर की, प्रिवेंशन के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं. दिस इज अवर बिगेस्ट missing point. So we should prevention of any disease. Prehabilitation. You must have listened to this term prehabilitation. This means कि prevention में हम कैसे work कर सकते हैं. So there are lots of जिससे we can help in prevention of hypertension. So Emma, just mute yourself. It's creating disturbance at my end. Please अपने आप को mute कर लीजिए. Otherwise I have to mute from my end. Okay, we can also help in early identification of the hypertensive patients. देखिए बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को भी नहीं पता होता कि उसको हाइपरटेंशन है. आप पेशेंट से पूछते हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, दैट इज ओके, बट पेशेंट हिमसेल्फ डजंट नो कि उसको हाइपरटेंशन है. सो वी मस्ट like have a BP measuring instrument at our clinic so that we can measure the BP at our end on the first contact with the patient. उससे आप क्या करेंगे, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे. इट हैपेंस विद मी आल्सो एट माय क्लिनिक आल्सो. बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि पेशेंट से पूछा कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, एंड पेशेंट डिनाइड, बट जब हमने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो इट वाज ऑन अ वेरी मच हायर साइड आल्सो. So that way we can help. Moreover, we can also notice and we can just suspect for hypertension also. Moreover, we can help the patient. We can help in enhancing the patient adherence. Okay. This has been proven by the researchers that patients who are under the supervision of a medical professional, they are more adherent to the treatment, both medical treatment and behavioral treatment. Again, coming to the treatment, it's very important. Physiotherapy has a big role in treatment of hypertension. We will be discussing in detail about that thing. And similarly, patient education. देखिए कोई भी प्रॉब्लम होता है, not only the hypertension, कोई भी प्रॉब्लम होती है, patient education is a very important point. We are teach this from maybe second year, third year. जिस पे हम सबसे ज्यादा कम स्ट्रेस देते हैं, what is patient education.
पेशेंट को उसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, और उसको कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है. So that is patient education. That is very important part in case of hypertension. Now this is also like if we are into the clinical practice, most of us, so this is like a new business opportunity for us. As we all know, this in this corona time, our normal bread and butter practice has seriously declined. We need to just explore the new avenues. That's what we are covering topic in this series. Exploring new horizons means same thing. So we are just deliberately taking those topics which can be easily managed in our clinic, but currently we are not managing at most of the centers. So if you are starting with the management of hypertension at your clinic, this will surely increase your business and bring reputation to you. Moreover, as I always say, this is the golden opportunity to earn our place in the medical system. देखिए हम हमेशा बोलते रहते हैं respect, 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 but nobody gives you respect when you are begging for that thing. ऐसा लड़ के झगड़ के या भीख मांग के कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी. You have to work in that way, work in a professional way. इसलिए खूब सारा पढ़िए, study a lot and study good text. मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, don't take it otherwise, but even our interns, they are just still relying on the teacher's note. यार you are into a professional course, तो टीचर्स के नोट कहाँ से आ गए? You should study some good textbook. ठीक है, ऑनलाइन आर्टिकल्स आर देयर, स्कॉलरली आप गूगल पे डालेंगे एनी टॉपिक, स्कॉलरली आर्टिकल फॉर एनीथिंग यू वांट, लॉट्स एंड लॉट्स साइंटिफिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल. देखिए हमने अपने बैचलर्स के टाइम पे हमने भी मिस किया बिकॉज नोबडी टोल्ड अस दिस थिंग, बट you should, because technology is now very advanced as compared to my bachelor's time. So please don't rely on spoon feeding. Teachers notes are ठीक है, okay for short term revision, but reference books की जगह कोई नहीं ले सकता. ठीक है, so study good things. तभी आप knowledgeable होंगे, then only you can earn respect for yourself and your profession as well. ऐसा सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा. उस पे केस कर दो, उसको केस कर दो, आईएपी क्या कर रही है, वो काउंसिल क्या कर रही है, काउंसिल भैंस बदल दे, all those bullshit things. काउंसिल आ भी जाएगी तो आपको रिस्पेक्ट थोड़ी मिलने वाली है ना. रिस्पेक्ट के लिए आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा. फर्स्ट earn your respect by yourself. Okay, don't blame any other. Now what is hypertension? According to the American Heart Association, hypertension is when the force of blood flowing through your blood vessel is consistently too high. As simple as that. देखो नॉर्मल क्या, हाई ब्लड प्रेशर अपने आप से ही बता दे रहा है क्या, और जो आपकी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, दैट इज इंक्रीज. सो ऑब्वियसली द फोर्स ऑफ ब्लड फ्लोइंग इज इंक्रीज इन योर आर्टरीज. उससे नॉर्मली होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर इज अ साइन दैट योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर बीन ओवरवर्क. दोनों चीजें ओवरवर्किंग हो रही है ना. हार्ट को ज्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करना पड़ रहा है और आपके ब्लड वेसल्स को उस ज्यादा प्रेशर वाले ब्लड को कंटेन करना पड़ रहा है. सो दोनों को ओवरवर्किंग करनी पड़ रही है. एंड इफ अनट्रीटेड दिस डिजीज कैन लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इन द लॉन्ग रन. अब आप इसमें देखेंगे, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द हार्ट. दिस इज शोइंग एनलार्ज्ड हार्ट. लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इज अ वेरी कार्डिनल साइन ऑफ हाइपरटेंशन. लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन जब भी होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, एनलार्जमेंट ऑफ वॉल्स भी होगी और एज अ होल भी होगा. सेम वे में ब्लड वेसल के लेवल पे आप देखेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा. ये दिस येलो पार्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. उसकी वॉल्स को डैमेज हो जाएगा. वी विल बी डिस्कसिंग, डोंट वरी. Now, blood pressure, as you all know, is measured by systolic over diastolic blood pressure, SBP over DBP. Systolic refers to the pressure when the heart is beating, and diastolic refers to pressure when the heart rests between the beats. So, एक बीट पे जब आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको भी like called systolic blood pressure. And जब दो बीट्स के बीच में जितना रेस्टिंग प्रेशर रहता है आपकी ब्लड वेसल के अंदर, that is diastolic blood pressure. So mainly diastolic blood pressure represents the resting resistance. So for an average adult, a blood pressure reading is considered normal if it's below 120 by 80 mm Hg. So 120 is systolic and 80 is diastolic. If it's below 120 by 80, that is normal. And more importantly, high blood pressure, as you all know, has no symptom until you begin to experience complications. As such, high blood pressure का कोई symptom नहीं आएगा. आपने भी देखा होगा काफी पेशेंट्स को वो बोलते हैं हमको पता चल जाता है बीपी बढ़ा हुआ है, हमारा कम हुआ है, मतलब पेशेंट्स आर वेगली सेइंग दिस थिंग, बट दिस इज टोटली अनट्रू. ऐसा किसी को नहीं पता चलता अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं हो गया एंड वो उसमें भी क्या होगा, सिम्टम आएगा. पेशेंट विल फील हेडेक एंड ऑल दोस थिंग्स. तो सिम्टम तो उसमें भी आ रहा है ना, बट नॉर्मली क्या होगा कि पेशेंट को सिम्टोमेटिक नहीं होगा कुछ अलग से, बट ही और शी मे बी हैविंग
high blood pressure. So that's why measuring blood pressure at your clinical setup is very important, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं. Most of the clinics, especially in Delhi, I observe. I am belonging to Delhi. So यहाँ पे normally physio clinics में आधी जगह पे तो blood pressure का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा, या जहाँ पे होगा तो दिखाने के लिए ही रखा होगा, उसको मेजर कोई भी नहीं कर रहा है. जबकि वी शुड मेजर फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट. डेली नहीं भी कर रहा है, बट फर्स्ट कॉन्टेक्ट पे तो कम से कम करिए ना. That's why it's very important to have your BP checked regularly and you should know your numbers. Now this graph is showing incidence of blood pressure or high blood pressure in India. This is based on a 2019 study by Dr. S. Ramakrishnan. So as you can see in this graph, this is the overall incidence, and this one is for women. So women is 23.1% approximately, and for male population is 34.2, and overall दोनों का average निकालेंगे so it's 30.7. This is the overall. But if you see at all the basically age group, they have divided the data into age groups. One generalization you can make कि that incidence of blood pressure, high blood pressure increases with age. जितनी ज़्यादा age हो रही है, उतना ज़्यादा incidence बढ़ता जा रहा है. Another generalization you can take from this graph is males are more susceptible to have high blood pressure as compared to females. आप किसी भी एज ग्रुप पे देख लीजिए, जो सेकंड वाला चेकर्ड ग्राफ आपको नजर आ रहा है, चेकर्ड बार, जो ये वाला बार है, दैट इज फॉर मेल एंड दिस इज हायर एज कंपेयर टू दिस फीमेल. किसी भी एज ग्रुप पे देखो, सब पे यही हो रहा है. इवन एट दिस मेल इज 51.5. a marginal thing is there, but still incidence is higher in male side. So that's why I'm saying the overall incidence is 30.7. So grossly आप बोल सकते हैं कि 3 में से 1 बंदे को हाइपरटेंशन है इंडिया के अंदर. So that's a very huge number. ठीक है? That's why this is a very huge group of patient you can tap upon and increase your clinical practice and both, but first increase your knowledge. Okay? So this is categories of BP in adults, and this is based on a new classification which was released in 2017 by ACC and AHA combined. American College of Cardiology and AHA stands for American Heart Association. They are both reputed organization working in this field, cardiorespiratory field. उन्होंने 2017 में ये गाइडलाइंस निकाली थी. उससे पहले JNC 7 की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते थे. So there is a change in this thing. Okay. So इसके हिसाब से क्या होता है? Normal blood pressure is when your systolic blood pressure is less than 120 mmHg and diastolic is less than 80. And second category is elevated. Elevated में क्या हो रहा है? Your SBP is less than 130, यानी 120 से 129 के बीच में आपका SBP है, and your diastolic blood pressure is still less than 80. वो 80 से कम है still. अभी हाइपरटेंशन की कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किया स्टेज 1 एंड स्टेज 2. स्टेज 1 में क्या हो रहा है? SBP is 130 to 139, यानी your systolic blood pressure is less than 140 mmHg or your diastolic blood pressure is less than 90. It's between 80 to 89 mmHg. अगर ये क्लासिफिकेशन में आप फॉल कर रहे हैं तो then it's stage 1 hypertension. And if your systolic blood pressure is more than 140, then or your diastolic blood pressure is more than 90, in both the scenarios you are falling into stage 2 hypertension. अब इसमें I don't know how many of you have noticed, अगर हम नॉर्मल और एलिवेटेड की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं? एंड यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? और, यानी अगर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों में से कुछ भी गड़बड़ है देन स्टेज 1 हो जाएगा. सेम वे फॉर स्टेज 2 ऑल्सो. अगर पेशेंट का सिस्टोलिक कम आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए आप बोलिए पेशेंट का सिस्टोलिक तो 135 आ रहा है बट डायस्टोलिक जो है वो 95 आ रहा है, स्टिल यू आर इनटू स्टेज 2. सो दैट्स व्हाट इंडिविजुअल with SBP and diastolic BP in 2 categories should be designated to higher BP category. जो भी higher category है, यहाँ पे and था, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए थी. ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान से पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं कि and और का डिफरेंस होता है. और बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इन दोनों में से जो भी हायर कैटेगरी में पेशेंट फॉल कर रहा है आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर देंगे. मोर और वन थिंग आप देखेंगे नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हम लोगों ने एक रीडिंग लिया, उस रीडिंग को हम बोलते हैं कि ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, जो भी व्हाटएवर, वो रीडिंग में जो भी आ रहा है. और मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल जनरल जीपीज जो होते हैं वो लोग उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं. आई हैव सीन पेशेंट्स जहां पे पेशेंट का फर्स्ट रीडिंग समझ लीजिए 140 आया एंड उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी जीपी ने. आई डोंट नो व्हाई. सो द गाइडलाइंस क्लियरली स्टेट दैट बीपी should be based on an average of more than 2 careful readings obtained on more than 2 occasions differently. यानी 2 different occasions पे
2 या 2 से ज्यादा रीडिंग्स आप लेंगे, उसके एवरेज निकालेंगे, वो जो आ रहा है दैट इज योर बीपी। उसके अकॉर्डिंगली आपको मैनेजमेंट को प्लान करना है पेशेंट। ऐसा नहीं कि पेशेंट चल के आया, आपने बीपी लिया, ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा एंड यू सेड यू आर हाइपरटेंसिव एंड आपने स्टार्ट कर दी चीज। हाँ, कभी नहीं। यू शुड बी टोटली अवेयर ऑफ दिस थिंग। और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ भी है, then also you should teach the patient. Again, patient education, this is again a form of patient education. So coming to types of hypertension, it's first of all primary hypertension and secondary hypertension. Primary में देखिए क्या होता है, there is no known cause, that's why it's known as essential hypertension also. Mainly genetic होता है, there are like various alleles, multi alleles and urea alleles are been isolated in our genomes, जो कि गाइड करते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा कि नहीं होगा। बट एज इन ऑल अदर केसेस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ में environmental factors also play a role, and environmental factors include dietary, that is high sodium intake, low potassium, calcium or magnesium intake, low fiber or low protein intake. Same way lifestyle disorders are also there, like they also lead to hypertension, diabetes mellitus, sedentary lifestyle, obesity obviously plays a major role, low physical fitness also plays a big role, and latest research has been showing gut microbiota as a role in case of essential hypertension, and very obviously excessive alcohol intake is always associated with hypertension. In the case of secondary hypertension, there is a known cause, कोई cause है जिसकी वजह से hypertensive हो रहा है patient। अब इसमें क्या क्या आएगा, common causes में renal diseases, obviously kidney has a big role in hypertension, this has been proven again and again. Primary aldosteronism, OSA is obstructive sleep apnea and drug induced, these are very common causes. Few uncommon causes are also there, like pheochromocytoma, that is a tumor of the adrenal gland, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन का जो प्रोडक्शन होता है वो अल्टर्ड होता है, that leads to hypertension. Cushing syndrome, as we all know, abnormality of the cortisol. Hyper और hypothyroidism, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा, आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो कैल्शियम लेवल विल बी इंक्रीज इन ब्लड. Similarly, aortic coarctation, this is normally congenital, and as we all know, this is narrowing of the aorta, the big blood vessel. Similarly, congenital adrenal hyperplasia, this is also associated with the adrenal gland, and acromegaly is like increased growth hormone. So these are few uncommon causes of secondary hypertension. Now, equipments. What are the equipments which are used to normally measure blood pressure? First of all, mercury sphygmanometer. This is a clinical standard of auscultatory measures calibrated to a column of mercury. This we have seen since childhood, the topmost figure. Now, latest are the oscillometric devices, second and the third image. These are the oscillometric devices. These uses a sensor that detect oscillations in the pulsatile blood volume during cuff inflation and deflation, and then BP is indirectly calculated from maximum amplitude algorithms that involve population based data. So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रेशर को मेजर नहीं कर रहे हैं, बट वी आर मेजरिंग द ऑसिलेशंस, और उसके अकॉर्डिंगली इनडायरेक्टली हम लोग पेशेंट का बीपी कैलकुलेट कर देते हैं. सो द सेकंड फिगर जो आप देख रहे हैं, दैट इज अ नॉर्मल डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली दिस इज लाइक टाइड ऑन द रिस्ट पे ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है. एंड दिस वन इज एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस. इसमें क्या होता है, दिस इज अ बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस जो पेशेंट की बीपी को रिकॉर्डिंग करता है. वी कैन मेजर बीपी फॉर 24 आवर्स, जैसे हम लोग हॉल्टर करते हैं ना ईसीजी के लिए, सेम वे में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं. आई एम यूजिंग दिस एट माय क्लिनिक, नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव डिवाइस बट अ वेरी गुड डिवाइस एंड वेरी रिलायबल. इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को आप लगा के छोड़ देंगे, 24 आवर्स की मॉनिटरिंग कीजिए, डे बीपी नाइट बीपी अलग अलग यू विल बी गेटिंग, एंड आप सेटिंग्स कर सकते हैं. बट नॉर्मली हम लोग क्या कर सेट करते हैं, जैसे डे टाइम पे एवरी 20 मिनट्स के इंटरवल पे वो ब्लड प्रेशर मॉनिटर खुद से करेगा, एंड सेम में नाइट टाइम पे 30 मिनट्स पे आप बट उसको अल्टर ऑब्वियसली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. सिमिलरली जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो दिस डिवाइस इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज एम्बुलेशन में पेशेंट इज वेरी फ्री टू डू एनीथिंग. उस टाइम पे बीपी में जो फ्लक्चुएशंस आती है हम लोग उसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग दैट डिवाइस. देखिए, अब वन मोर एडवाइस एट दिस टाइम. नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिक पे प्रैक्टिस नहीं है, पेशेंट पे नहीं करता एंड ऑल दोस थिंग्स, बट उसका सॉल्यूशन क्या है, कभी सोचा किसी ने? ब्लेम करने से तो कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, सॉल्यूशन किसी को नहीं पता. सब सीनियर्स की तरफ देखो, एसोसिएशन की तरफ देखो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पे स्केल बढ़ाओ, अरे यार उससे कुछ नहीं होता. इट्स प्योरली सिंपली बिजनेस. आपको जब कोई बोलता है कि वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर साहब को दिखा के आए, यार बड़ा क्या होता है, हाइट में बड़ा है कि नॉलेज में बड़ा है? कुछ में बड़ा नहीं है. बड़ा सिर्फ ये है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, मैक्स में बैठा है, फोर्टिस में बैठा है. अब वहां पे क्या लाइबिलिटीज होती है, एवरीबॉडी नोज. मैं अभी ओपनली उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या होती है आप सब जानते हैं.
बट बिकॉज वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है। सेम वे हम लोग ये देखिए, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपने अपने क्लिनिक में क्या इन्वेस्ट किया है। यार मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दिस एबीपीएम डिवाइस। मेरे पास भी थोड़े टाइम पहले आया, दूसरों को क्या बोलूं मैं, ठीक है। हम लोग खुद से इन्वेस्ट तो करते नहीं है, बेसिक सेटअप लगाया एंड वी एक्सपेक्ट कि पेशेंट विल कम एंड पेस 500 या 1000। व्हाई? क्यों देगा यार? आप पेशेंट को खुद की जगह देखो ना। आप अभी जा रहे हैं कहीं पे खाना खाने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू 5 स्टार, ऑब्वियसली यू विल पे 1000 फॉर अ वेजिटेबल, ठीक है। बट अगर आप कहीं पे ढाबे पे खाना खा रहे हैं या कहीं पे और लोकल जगह पे, मे बी किसी कार्ट पे खाना खा रहे हैं, तो वहां पे आपको 100 रुपीज भी लगेगा, यार ज्यादा ले लिया इसने पैसा। सिंपल है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनहांस योर नॉलेज, एनहांस योर सेटअप, इन्वेस्ट इन योर सेटअप। नाउ कप साइज, कप साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक कप होगा उसी को सबको लगा देंगे और बीपी मेजरमेंट करते रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कप साइज के वेरियस स्टडीज हैव शोन कि अगर आप इम्प्रॉपर कप साइज यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका बीपी की जो मेजरमेंट्स आ रही है वो ठीक नहीं आ रही है, या दोज आर नॉट रिलायबल। सो 20 to 26 सेंटीमीटर अगर सर्कमफ्रेंस है पेशेंट के आर्म का, अगर ये आर्म सर्कमफ्रेंस, दिस इज द आर्म सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे आप लेंगे सर्कमफ्रेंस, अगर दिस इज 20 to 26, then small adult size. If it's 27 to 34 centimeter, then adult size. 35 to 44 centimeter large adult size, या 45 to 52 centimeter is adult thigh size. अब देखिए, अगर आप नॉर्मली मेजर करके करते हैं दैट इज वेरी गुड, बट प्रैक्टिकली होता नहीं है। सो अ ग्रॉस आइडिया यू कैन टेक इज कि जो आपकी आर्म की लेंथ है, आपका जो कप होता है दैट उसको 80% कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी आप मेजर कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर्म लेंथ क्या है, अगर उसका 80% कफ कवर कर रहा है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली ओके साइज फॉर द पेशेंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू मेजर बीपी एट द क्लिनिक। हम लोग ठीक है ऐसा करते हैं नॉर्मली सब जगह, देखिए आया पेशेंट स्टूल पे बैठाया, ब्लड प्रेशर मशीन लगाई, इधर तो मैनुअल मैनोमीटर से किया या जो भी किया, ऑसिलोमीटर डिवाइस से किया, और आपने बोला कि ये रीडिंग आ गई। बट दिस इज टोटली अनरिलायबल थिंग, करेक्ट भी नहीं होगी। सो दिस मेजरमेंट शुड बी बेसिकली अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। और यहाँ पे क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दैट 2017 ACC AHA गाइडलाइंस। इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट प्रिपरेशन। So have the patient relax sitting in a chair, feet on floor and back supported for more than 5 minutes. 5 मिनट पहले पेशेंट को बैठाइएगा, चेयर पे बैठाना है with back supported, प्रॉपर स्टूल पे नहीं बैठाना है, and feet should be on the floor, but feet shouldn't be crossed, legs को क्रॉस करके ना बैठा हो पेशेंट, ठीक है। The patient should avoid caffeine, exercise and smoking for at least 30 minutes before the BP measurement, and ensure patient has emptied his or her bladder, because अगर bladder full होगा तो obviously readings alter करेंगी। Neither the patient and the observer should talk during the rest period or during the measurement. बात नहीं करनी है पेशेंट से, जब आप 5 मिनट उसको बैठा रहे हैं या जिस टाइम पे आप बीपी मेजरमेंट कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी टाइम पेशेंट से बातचीत नहीं करनी है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि वो अटेंडेंट या किसी और से भी बात नहीं कर रहा है, जो नॉर्मली हमेशा हमारी क्लिनिक पे होता है कि हम लोग बात भी कर रहे हैं और कैसे हो, ये है वो है, और पेशेंट का बीपी मेजरमेंट करते जा रहे हैं, हमेशा गलत। Similarly, remove all the clothing covering the location of the cuff placement. It's very important. होता क्या है, पेशेंट आया, क्लोथिंग तो रिमूव करनी नहीं ना, ऊपर से लगाया टक 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 एंड कर दिया, टोटली रॉन्ग, रिलायबल तो बीपी नहीं आएगा। सो यू हैव टू रिमूव ऑल द क्लोथिंग दैट इज कवरिंग द आर्म, एंड मेजरमेंट्स मेड व्हाइल पेशेंट इज सिटिंग और लाइंग ऑन एन एग्जामिनेशन टेबल डू नॉट फुलफिल दीज क्राइटेरिया। इट्स लाइक क्लियरली वेरी मेंशन्ड कि अगर आप एग्जामिनेशन टेबल या स्टूल पे बैठा के कर रहे हैं, लिटा के कर रहे हैं पेशेंट का बीपी, तो वो कभी भी उसको मतलब रिलायबल आप नहीं बोल सकते हैं। पेशेंट को प्रॉपर चेयर पे बैठा के रिलैक्स करा के बैठाना है। Step 2 is about the techniques for BP measurement. Use a BP measurement device that has been validated and calibrated periodically, and the patient arm should be supported. Example, patient arm should be resting on a desk, या फिर अगर चेयर का आर्म सपोर्ट है तो उस पे पेशेंट के आर्म को रेस्टिंग पे रखना है आपको। And position the middle of the cuff on the patient upper arm at the level of right atrium. यानी आपके कफ का जो मिडल है वो एट्रियम के मिडल पे, स्टर्नम के मिडल पे बेसिकली होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये अगर आर्म है, इफ यू कैन सी मी जस्ट, ये आर्म है, इसका मिडल ग्रॉसली ये होगा, आपका स्टर्नम ये होगा, ठीक है। तो जो आपका कफ आप यूज कर रहे हैं उसका जो मिडल होगा दैट शुड बी एट ग्रॉसली एट द लेवल ऑफ मिडल ऑफ द स्टर्नम। मेक श्योर दिस थिंग इज देयर, ठीक है। Use the correct cuff size, very important, such that the bladder encircles 80% of the arm. And note if a larger or smaller the normal cuff size is used. आपको कोशिश करनी है कि आप प्रॉपर कफ साइज यूज कर रहे हैं, बट इनकेस अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, मेजरिंग द बीपी ऑन दैट वेरी टाइम इज वेरी एसेंशियल, देन आप उसमें नोट डाल दीजिएगा कि आपने क्या कफ साइज यूज किया है, स्मॉलर या लार्जर जो भी आप यूज कर रहे हैं।
एंड स्टेथोस्कोप और डायफ्राम और बेल दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं फॉर ऑस्कल्टेटरी रीडिंग्स. Third is about taking the proper measurement needed for diagnosis and treatment of elevated BP or hypertension. इसमें क्या है? At the first visit, record BP in both the arms. Use the arm that gives higher reading for subsequent readings. आप दोनों का मेजरमेंट कीजिए, जिस भी आर्म में ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है आप सब्सिक्वेंटली उसको यूज करना है आपको बीपी मेजरमेंट के लिए, जो हम कभी नहीं करते हैं. सिंपली अपने अकॉर्डिंगली एक आर्म करके और उसको फाइनल बोल देते हैं, जबकि वो नहीं होता. एंड सेपरेट रिपीटेड measurements by 1 to 2 minutes. ऐसा नहीं कि एक से उतारा फटाफट से दूसरा ले लिया. 1 to 2 मिनट का आपको उसमें गैप जरूर देना है. एंड फॉर ऑस्कल्टेटरी डिटर्मिनेशन यूज अ पैल्पेटेड एस्टिमेट ऑफ रेडियल पल्स ऑब्लिटरेशन प्रेशर टू एस्टिमेटेड बीपी. देखिए नॉर्मली क्या कर रहे हैं हम लोग ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए, कफ लगाया आपने कफ साउंड सुना, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको बता दिया. बट दिस इज अगेन नॉट अ वेरी प्रॉपर वे. आपको क्या करना है, आपने कफ लगाया, ब्लैडर को इन्फ्लेट किया जैसे उसके, एंड एट द सेम टाइम यू आर बेसिकली palpating the radial pulse. आप radial pulse को palpate करें. यहाँ पे कफ लगाया हुआ है आपने, ठीक है, आप आर्म पे कफ लगा रहे हैं and at the same time you are palpating the radial pulse. जब आप ब्लैडर को इन्फ्लेट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रेडियल पल्स जो होती है ऑब्लिटरेट हो जाती है, यानी आपको पल्स फील होनी बंद हो जाएगी. जिस भी पॉइंट पे पल्स फील होनी बंद हो रही है वहां से 20 to 30 mmHg और ऊपर तक इन्फ्लेट कर लीजिए. ठीक है, यहाँ से हटा लीजिए हाथ, रिमूव दिस थिंग एंड देन ऑस्कल्टेशन स्टार्ट कीजिएगा आप बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर. और जो कोराकोफ साउंड आ रही है, द फर्स्ट कोराकोफ साउंड is like signifying the systolic blood pressure and the last one is signifying the diastolic blood pressure. ठीक है, तो आपको इस तरह से उसको करना है. And then proper documentation is very necessary. You should record both systolic blood pressure and diastolic blood pressure properly, and you should also note the time of most recent BP medication taken before medication. अगर पेशेंट ऑलरेडी ड्रग्स ले रहा है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए तो आपको वो भी मेंशन करना है कि लास्ट टाइम पे पेशेंट ने कब लिया था. अगर आप मान लीजिए इवनिंग में आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं 6 o'clock, तो अब पेशेंट ने मॉर्निंग में मेडिसिन लिया तो जस्ट मेंशन द टाइम कि मॉर्निंग में कितने बजे पेशेंट ने मेडिकेशन लिया हुआ है. देन एवरेज द रीडिंग्स. देखिए सेम थिंग, मोर देन 2 रीडिंग्स ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स, उनका एवरेज निकालिए. दैट इज द एक्चुअल ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट and provide patient with the readings both verbally and in written. Now how to measure BP at home? This is very important. जो पहले हमने बात करी that was for measurement at clinic. Now if अगर आप पेशेंट को सिखा रहे हैं खुद से बीपी कैसे मॉनिटर करना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, patient should be properly trained for about information about the hypertension, selection of the equipment and acknowledgement that individual BP readings may vary substantially and interpretation of the results. Devices में you should help the patient with choosing a proper validated device and monitors with provision of storage of reading are preferred. यानी जिसमें स्टोरेज हो सकता है. नॉर्मली आजकल जो भी ऑसिलोमीटर डिवाइसेस आ रहे हैं सबके अंदर स्टोरेज का प्रोविजन होता है, उसी को हमको प्रेफर करना है. एंड कप साइज के लिए ऑब्वियसली प्रॉपर कप साइज शुड बी, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि एक ही पेशेंट पे करना होगा तो आप उसको प्रॉपर कप साइज दे सकते हैं. और लेफ्ट और राइट आर्म का जो भी डिफरेंस आता है वो पहले आप अपने एंड पे मेजर कर लीजिए. जो भी हाई एंड पे है पेशेंट को आपको बोलना है उस आर्म पे मेजर करने के लिए. अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या देनी है पेशेंट को होम बीपी मेजरमेंट के लिए? रिमेन स्टिल, अवॉइड स्मोकिंग, कैफिनेटेड बेवरेजेस और एक्सरसाइज विदिन 30 minutes before BP measurement, and you should ensure more than 5 minutes of quiet rest before the BP measurement. Sitting correctly is very important. Sit with back straight and supported on a straight back dining chair, not on a sofa. Okay, sit with feet flat on floor and legs uncrossed. Legs shouldn't be crossed as I earlier mentioned. Keep arms supported on a flat surface such as a table or armrest at the heart level. And bottom of the cup should be placed directly above the antecubital fossa. जो आपके एल्बो पे एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है उसके डायरेक्टली अबव आपको रखना है. और पेशेंट को क्या सिखाना है? टेक द मल्टीपल रीडिंग्स. टेक एटलीस्ट 2 readings 1 minute apart in morning before taking medications and in evening before taking the dinner. And you optimally measure and record BP daily and ideally obtain weekly BP readings beginning 2 weeks after a change in treatment. और obviously क्लिनिक पे विजिट जाए उससे पहले आपको बीपी की मेजरमेंट्स जरूर लेके आनी है. जब आप सारी रीडिंग्स ले लेते हैं उसको करेक्टली रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई मॉनिटर्स विद बिल्ड इन मेमोरी शुड बी ब्रॉट टू ऑल क्लिनिक अपॉइंटमेंट्स. अगर बिल्ड इन मेमोरी है तो उसको आप क्लिनिक पे लेके आइएगा. पेशेंट क्लिनिक पे लेके आएगा तो ऑब्वियसली आप उधर पे चेक कर सकते हैं. एंड बीपी शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ मोर देन 2 readings on 2 separate occasions. Okay, now this is what clinic BP, home based blood pressure. HBPM stands for home blood pressure, daytime blood pressure, nighttime blood pressure and 24-hour average. इन सब में वेरिएशंस आता है. दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी
बिग स्टडी ऑन क्वाइट अ लार्ज थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, उसके हिसाब से उन्होंने एवरेज दिखा रहा। तो अगर क्लिनिक में बीपी 120/80 है तो होम बेस्ड भी सेम ही आएगा, बट आप देखेंगे नाइट टाइम पे पेशेंट का फॉल कर जाएगा ड्यू टू फॉल इन द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सेम वे में 24 आवर्स का ब्लड प्रेशर की आप एवरेज देखेंगे वो भी थोड़ा सा कम होगा। अब इसमें क्या देखिए आप, जितना ज्यादा क्लिनिक पे बीपी होगा 160/100 अगर आ रहा है तो यहाँ पे वेरिएशन उतना ही ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। नाइट टाइम पे उतना 20 mmHg का फॉल आ रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, दैट इज अ ह्यूज। तो बट स्टिल अगर नाइट टाइम ब्लड प्रेशर 140/85 आता है पेशेंट का, आप स्टिल उसको इसमें कैटेगराइज करेंगे, स्टेज 2 हाइपरटेंशन में कैटेगराइज करेंगे, ओके। या अगर नाइट टाइम बीपी आप बोलिए 100/65 की रेंज में आ रहा है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हाइपोटेंशन हो गया पेशेंट, दैट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल एवरेज चार्ट। नाउ इसके नॉर्मल, इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं लाइक मास्क हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, यू मस्ट ऑल बी नोइंग। तो नॉर्मल टेंशन में क्या होगा कि क्लिनिक सेटिंग में, होम बेस्ड सेटिंग में दोनों में कोई हाइपरटेंशन नहीं दिखाएगा, एंड सस्टेन में क्या होगा, दोनों में हाइपरटेंशन आएगी, क्लिनिक में भी शो करेगा एंड एट होम ऑल्सो या नॉन हेल्थ केयर फैसिलिटी पे आप चेक कर रहे हैं तो भी आएगा। बट इन केस ऑफ मास्क हाइपरटेंशन, मास्क में क्या हो रहा है देखिए, क्लिनिक में नॉर्मोटेंसिव है पेशेंट, क्लिनिक में नॉर्मल बीपी आएगा, बट आप घर पे चेक करेंगे, एम्बुलेटरी चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर उसको हाई आएगा। सिमिलरली व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट व्हाइट कोट को देखेगा, यानी जब क्लिनिकल सेटअप में होगा तो बीपी ज्यादा होगा बट घर पे कम आएगा। बट हाउ टू डायग्नोस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है या मास्क हाइपरटेंशन है तो आप कैसे आगे जाएंगे, देखिए अगर ऑफिस बीपी पेशेंट का 130/80 mmHg से ज्यादा है बट लेस देन 160/100 mmHg, इवन डिस्पाइट 3 months ट्रायल ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड, और सस्पेक्ट आप कर रहे हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है तो और आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करना है, उसमें डे टाइम बीपी मेजरमेंट कीजिए या होम बेस्ड बीपी मेजरमेंट कीजिए। यानी क्लिनिक पे आपके पेशेंट 130/80 से ज्यादा दिखा रहा था, बट आप डे टाइम करते हैं पेशेंट का या घर पे करता है पेशेंट तो 130/80 से कम आता है, तो उस केस में क्या होगा, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन उसका प्रूवन हो जाएगा। एंड वहां पे आपको क्या सजेस्ट करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड एनुअल HBPM और ABPM की मॉनिटरिंग करनी है ताकि आप उसकी प्रोग्रेशन को डिटेक्ट कर सकें। बट ऐसा अगर नहीं हो रहा, यानी क्लिनिक पे ज्यादा आ रहा था घर पे भी ज्यादा आ रहा है, देन ऑब्वियसली व्हाइट कोट हाइपरटेंशन नहीं है, आपको क्या करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कंटिन्यू करना है एंड स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ओके। सिमिलरली सेकंड सिनेरियो आता है मास्क हाइपरटेंशन का। ऑन योर राइट साइड यू कैन सी, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्लिनिक पे ठीक आ रहा है, इट्स लेस देन 130 एट द क्लिनिक एंड डायस्टोलिक इज लेस देन 80 आफ्टर 3 months ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं मास्क हाइपरटेंशन। अगेन आप क्या करेंगे, डे टाइम ABPM या HBPM मॉनिटर करेंगे, और पेशेंट का अगर 130/80 से ज्यादा आ रहा है देन मास्क हाइपरटेंशन है, उस केस में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी स्टार्ट कर देने हैं। और अगर कम आ रहा है तो देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप करेंगे और बीपी की एनुअल मॉनिटरिंग करेंगे टू चेक द प्रोग्रेशन। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ABPM या HBPM, यानी होम बेस्ड और एम्बुलेटरी प्रेशर मॉनिटरिंग का सिग्निफिकेंस कहाँ पे आता है, डिटेक्शन ऑफ मास्क हाइपरटेंशन और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ओके। नाउ इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। Hypertension is when your blood travels through more force in your blood vessels, or blood pressure. When blood pressure is high, it can damage your heart and blood vessels over time, and this leads to dangerous complications and even death if left untreated. As I told you earlier, direct symptoms कुछ नहीं होते हैं, that's why it's very dangerous. So अब देखेंगे अगर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी की बात करते हैं तो सिर से पैर तक सभी जगह इफेक्ट करता है। It can lead to aneurysm, it can lead to problem with memory and understanding, obviously brain के लेवल पे इफेक्ट आएगा, sleep apnea also, chest pain due to हार्ट अटैक ऑल्सो, या फिर रिड्यूस ब्लड फ्लो इस्कीमिया की वजह से चेस्ट पेन आ सकता है, किडनी डैमेज और फेलियर कर सकता है, बिकॉज आपके किडनी को डैमेज करेगा जो ज्यादा प्रेशर है। सेम में जो आर्टरीज है किडनी को जो ब्लड सप्लाई करती है वो भी डैमेज हो जाती है। आर्टरी डैमेज इज बट ऑब्वियस, वॉल्स की बेरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है। सिमिलरली हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज वेरी कॉमन इन द ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हिमरेजिक स्ट्रोक की चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी कम हो गई तो क्या होगा, रप्चर हो जाएगी ना आर्टरी। सिमिलरली ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड क्लॉट नॉर्मली क्या होता है, आर्टरी की नैरोइंग हो गई है तो ब्लड क्लॉट्स की वजह से वो प्रॉपर उसको ब्लॉक कर देगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सिमिलरली एंड इट कैन आल्सो लीड टू वेजाइनल ड्राइनेस और लोअर्ड सेक्सुअल डिजायर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इट्स वेरी कॉमन, arrhythmias, blood or loss of vision. Similarly, choroidopathy, that is like accumulation of fluid behind the retina, and dementia. So these are the effects of blood pressure on the body. Now, clinical significance of hypertension is in the morbidity associated with mainly heart, brain and kidney due to structural changes in heart and blood vessels. देखिए
डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, बट मोस्ट मेनली क्या इफेक्ट कर रहा है, हार्ट को इफेक्ट कर रहा है, ब्लड प्रेशर, आपके ब्रेन को कनेक्ट इफेक्ट कर रहा है या किडनी को इफेक्ट कर रहा है, आप उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आएगा जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। एग्जांपल के लिए एलवीएच, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। एंड एलवीएच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। So there are various CVD risk factor in patient with hypertension. Some are modifiable and some are relatively fixed. Modifiable में जैसे कि अगर स्मोकिंग हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस, ओवर वेट हो जाएगा, डिस्लिपिडीमिया हो जाएगा, या इनएक्टिविटी हो गया, अनहेल्दी डाइट हो गया, इन सबको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिक्स के अंदर क्या आएगा, क्रॉनिक किडनी डिजीज, फैमिली हिस्ट्री, इंक्रीज एज, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मेल सेक्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या साइकोसोशल स्ट्रेस, इनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, दैट्स व्हाई। So CVD risk factor affect BP through activation of renin, angiotensin, aldosterone system, activation of sympathetic nervous system, inhibition of cardiac natriuretic peptide system, endothelial dysfunction and other mechanisms such as increased arterial stiffness. इन सब की वजह से आपके जो CVD होता है उसके रिस्क फैक्टर जो है इन सब चीजों को इफेक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई BP आपका चेंज हो जाता है, ओके। अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। सो नॉर्मली क्या होगा, ओरल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज करते हैं, प्राइमरी एजेंट्स होते हैं कुछ जो वेरी कॉमनली यूज होते हैं, जैसे एस इनहिबिटर्स, एआरबीस, डायूरेटिक्स एंड सीसीबी। सीसीबी स्टैंड फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नॉर्मली हम लोग सिंगल या इनके कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ओके। एंड सम आर सेकेंडरी एजेंट्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स, डायरेक्ट रेनिन